पूर्वी यूरोप पे शासन करेगा, वो पूरे यूरोप पे शासन करेगा, और जो पूरे यूरोप पे शासन करेगा पूरे विश्व पे शासन करेगा। इसी पर इसको प्रमाणित करते हुए हिंद महासागर के बारे में केन कनिकर ने कहा है, जो हिंद महासागर पे शासन करेगा वो पूरे यूरेशिया पे शासन करेगा, और जो पूरे यूरेशिया पे शासन करेगा वो पूरे विश्व पे शासन करेगा। थैंक यू। Thanks. That's Gangwar, Department of Geography, RSM PG College, Dhampur. To touch some point in present research paper, import and export, because the import and export is a very important word for any country, क्योंकि आप जब तक कोई चीज आयात और निर्यात नहीं करेंगे तब तक आप अपना जो पावर है, शक्ति है, उसको नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है। आप यू कैन से पी फॉर पैसा एंड पी फॉर पावर। तो ये जो पी है वो हमारे इर्द गिर्द है, और क्योंकि इसी से ही कोई भी देश है वो आगे बढ़ सकता है। क्योंकि हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारा बहुत सारे क्षेत्रों में एक्सपोर्ट कम है ना, हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन अभी जो आप पिछले कुछ समय डोनाल्ड ट्रंप 2.0 में आप देखेंगे तो वही टैरिफ वार की कहानी शुरू हो रही है, जो कि हमारा सेमिनार उस अमेरिका पे ही पूरा एक बेस्ड है। क्योंकि सेकंड जो टर्म है उनका, वो एक आपने कल भी इनॉग्रल सेशन में सुना था कि जो सेकंड टर्म है वो डिफरेंट है। वो हो सकता है क्योंकि गलतियां होती हैं, हो सकता है मे बी कि हमारी गवर्नमेंट से कुछ गलतियां हुई हो, लेकिन उनको वो अब सही हो रहा है। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, ऐसा हरीश अरोड़ा, I think that's 14 from. First of all, good morning, one and all. Good morning, all the dignitaries on the dais. I'm Harish Arora, Research Scholar, Department of Business Administration, MJP Royal University, Bareilly, and I'm also serving here in my BBA department. My topic for the paper is Indo-Pacific Strategies and an Economic Implication for India-US Trade, a Critical Review. First of all, the term Indo-Pacific refers to the extensive maritime quadrangle stretching from the United States Pacific coast across the Indian Ocean to East Africa. It encompasses some of the world's fastest growing economy and most significant seaborne trade routes. The United States Indo-Pacific Strategy (IPS) was formally launched in 2022 to promote a free and open regional order, reinforcing security, connectivity, economic integration, and resilience against authoritarian expansion, chiefly China's rising geographical footprint. This paper explores how the Indo-Pacific strategy reshapes economic relations, particularly trade between India and the United States. As bilateral trade reaches unprecedented levels, policy shifts under the IPS open new avenues for the economic cooperation while posing challenges that require deft strategic navigation. The Indo-Pacific strategy origins and core tenets. The Indo-Pacific strategy emerged from the shifting global power balances marked by China's economic ascent, territorial assertiveness in the South and East China Sea, and deepening the technological competition with the United States. The United States adopted the Indo-Pacific concept to reinforce democratic alliances and establish an integrated regional order promoting security, economic prosperity, and rule-based norms. What are US vision and strategic objectives behind this Indo-Pacific strategies? The first one is security cooperation. The next is economic integration. Then the connectivity and resilience, enduring energy, technological and critical material supplies.
chains are diversified and secured. Economic dimensions of the Indo-Pacific strategy. The Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), announced in 2022, the IPEF represents the economic pillar of the IPS, encompassing trade facilitation, supply chain resilience, clean energy transitions, fair economic practices, and digital economic cooperations among participating nations, including India, the United States, Japan, and ASEAN members. While not a traditional free trade agreement, IPEF aims to foster standards for fair trade and investment, resilience in critical supply chain, clean energy and climate cooperation, and digital economic norms. Indo-US trade trends and contemporary dynamics. Bilateral trade growth. India-US bilateral trade has grown significantly over the last decade, driven by goods, services, and investment flows. India's exports include pharmaceuticals, electrical machinery, precious stones, and apparels. Imports from US include minerals, fuel, machinery, and technological products. For the financial year 2025, trade reached to a record of US 132 billion with a notable trade surplus for India. The US is among India's top investor with cumulative FDI exceeding US 70 billion. Recent trade deal developments. In early 2026, India and United States reached a landmark trade agreement that recalibrated tariffs and market access. The deal reduced US tariffs on Indian goods for punitive levels near 50% down to 18%, contingent on India's reducing repurchase for purchase of Russian oil and increasing imports of US products. The agreement also anticipates a potential expansion in the market access, particularly for US agriculture products, and increased defense energy and technological trade. Strategic and economic mutual benefits. What are the mutual benefits? First is market access expansion, second is diversified energy import, and the third is enhanced investment flows. The economic implication of Indo-Pacific strategy on India's US trade. Trade facilitation and growth. The IPS has contributed to stronger economic ties through standard harmonization, trade facilitation, and digital and clean economic cooperation. Economic implications for Indo-Pacific strategy on India-US trade, investment and innovation linkages, strategic value of economic cooperations. What are the challenges and risks? First one is balancing strategic autonomy and economic alignment. India must consciously negotiate economic commitments with the Indo-Pacific ecosystem to avoid excessive dependency on any single market and or regulatory framework, preserving strategic autonomy. Domestic competitiveness constraints. India comparatively higher applied tariff structure and non-tariff measures could limit full gains from trade liberalization. Structural reforms are necessary to enhance global competitiveness. Political and implication uncertainties. While the 2026 trade agreement marks progress, detail regarding the implication, timeliness, sector-specific tariff schedules, and non-tariff barriers remain uncertain. Lack of clarity could delay effective economic outcomes. What are the policy recommendations? The first is strengthening supply chain participation. The other is promote regulatory reform. Then to deepen strategic economic dialogues. And the last is invest in technology and skill development. Now the conclusion. The Indo-Pacific strategy represents a profound shift in global geopolitical and economic architecture. Its economic dimensions embody the frameworks like the IPEF and deepening the bilateral ties carries considerable implication for India-US trade. While the challenges persist, recent trade agreements and the collaborative economic engagements indicate a mutual commitment to deepening the trade, investment, and strategic cooperation. India's proactive engagement in the strategic cooperation, the Indo-Pacific Economic Order can unlock the significant growth opportunities
reinforce its role as an emerging global economic and strategic powerhouse. Thank you. Thank you, Harish ji. The topic Indo-Pacific strategy and its economic implications. Basically, you belong to Department of Business Administration. Business and administration is the subject is the one, but the part of two. Administration is a must, and business is a must. But you are touch the many point IPS to IPES and to touch one dimensions in defense studies, the 3M concept, man, machine, and money. And then in 26 that to ट्रेड एग्रीमेंट एंड चेंज टू 15%, जो कि आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारा मतलब हर एक बार मतलब जब वो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो वो ट्रेड का परसेंटेज बढ़ रहा है। जैसे आप डेली अभी देख रहे हो कि पिछले कुछ समय से जैसे गोल्ड मतलब सोना और चांदी जैसे आप गूगल कर रहे हैं कि डेली बढ़ रहा है, ऐसे वो उनको बस ये लग रहा है कि हम ट्रेड के माध्यम से जितना हम टैरिफ लगाते जाएंगे हो सकता है कि लोग हमारे दायरे में आ जाए। लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप ये भूल रहे हैं कि केवल अमेरिका ए से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ए के बाद और अल्फाबेट में और भी कंट्री आते हैं, तो हो सकता है कि वो देश और देशों के साथ में अपना ट्रेड स्टार्ट करेंगे, देन आपको साइडलाइन करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो हमारे स्कॉलर हैं डॉक्टर विपिन कुमार फ्रॉम SMM टाउन PG कॉलेज बलिया, और सर का जो टॉपिक है वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सर ने जो टॉपिक लिया है कि वो 2026 में है, क्योंकि अभी आप आज फर्स्ट मार्च में अभी 2 ही महीने उन 2 महीनों में 2026 में क्या हुआ है इसके ऊपर सर का टॉपिक है। आइए। मेरठ कॉलेज मेरठ से आए हुए प्रोफेसर नवीन वर्मा सर, रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर MP सिंह सर, सेवानिवृत्त प्रोफेसर नीरजा अस्थाना मैम, डॉक्टर अक्षय कुमार और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर यशार्थ गौतम, और यहाँ उपस्थित सभी विद्वान प्राध्यापकों और छात्र छात्राओं को मैं सादर अभिवादन करता हूं। मेरा जो शोध आलेख है ये 2026 में भारत अमेरिका संबंध, रणनीतिक सहयोग और आर्थिक आयाम, इस विषय पर आधारित है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत अमेरिका साझेदारी एक महत्वपूर्ण रणनीतिक गठबंधन के रूप में उभरी है। ये रक्षा, भू राजनीति, तकनीक, व्यापार, जलवायु सहयोग और जन संपर्क जैसे अनेक क्षेत्रों को शामिल करती है। 2026 के संदर्भ में यह साझेदारी मजबूती के साथ साथ कुछ चुनौतियों का भी सामना कर रही है। रक्षा क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज समझौता ज्ञापन 2016, संचार अनुकूलता और सुरक्षा समझौता 2018, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट 2020 और 2025 का 10 वर्षीय रक्षा फ्रेमवर्क भारत अमेरिका सहयोग को सशक्त बनाते हैं। मालाबार अभ्यास, MH-60R Seahawk हेलीकॉप्टर और मिसाइल सौदे इसमें प्रमुख हैं। क्वाड के माध्यम से दोनों देश मुक्त और नियम आधारित इंडो पैसिफिक का समर्थन करते हैं। हालांकि पाकिस्तान की नीति और रूसी तेल खरीद पर अमेरिका के रुख से कुछ तनाव बने हुए हैं। तकनीकी सहयोग, क्वांटम तकनीक, सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा में ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप, यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट जैसी पहलें तथा अमेरिकी निवेश से आपसी विश्वास बढ़ा है। आर्थिक क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार $300 बिलियन तक पहुंच सकता है, लेकिन ऊंचे टैरिफ और व्यापार असंतुलन के कारण चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं।
जलवायु सहयोग में मतभेदों के बावजूद सौर ऊर्जा और सतत विकास पर साझी प्रतिबद्धता बनी हुई है। लगभग 40 लाख भारतीय प्रवासी, शिक्षा और सांस्कृतिक संबंध इस साझेदारी की मजबूत नींव है। और वीजा नीतियों को लेकर भी कुछ आपसी तनाव बने हुए हैं। वैश्विक राजनीति के उथल पुथल भरे दौर में भारत और अमेरिका का रिश्ता एक ऐसी मजबूत डोर की तरह है जो समय की परीक्षा से गुजरते हुए और मजबूत होती जा रही है। अमेरिका और भारत दो ऐसे देश हैं जहां एक तरफ दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है और दूसरी तरफ सबसे बड़ा। ये दोनों देश मिलकर न केवल अपनी सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं बल्कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति और संतुलन की नींव रख रहे हैं। लेकिन हर रिश्ते की तरह इसमें भी उतार चढ़ाव हैं। 2026 में डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी सरकार ने संबंधों में कुछ नई चुनौतियां की हैं, जैसे कि 50% टैरिफ लगाना और व्यापार समझौते की देरी, जिससे कि भारतीय निर्यात प्रभावित हो रहा है। फिर भी ये साझेदारी साझा हितों, लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी विश्वास पर टिकी हुई है। इस लेख के आधार पर इस सहयोग को समझते हुए विस्तार से भारत अमेरिका की साझेदारी को समझने का प्रयास किया गया है, जिसमें रणनीतिक, भू राजनीतिक, तकनीकी, आर्थिक, जलवायु और जन जन संपर्क जैसे आयाम शामिल हैं। हाल की घटनाओं में नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर की भारत यात्रा और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा से उनकी मुलाकात भारत अमेरिका आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूती देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। भारत और अमेरिका की साझेदारी की जड़ें गहरी हैं, लेकिन ये समय के साथ विकसित हुई हैं। 1947 में भारत की आजादी के बाद जब जवाहरलाल नेहरू की गुटनिरपेक्षता की नीति ने अमेरिका को भारत से दूर रखा, जबकि शीत युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया। 1971 के भारत पाक युद्ध में अमेरिका की 7वीं फ्लीट की तैनाती ने इस तनाव को और बढ़ाया। लेकिन 1990 के दशक में सोवियत संघ के पतन और आर्थिक उदारीकरण ने एक नया रास्ता खोला। 2000 में बिल क्लिंटन की भारत यात्रा और 2008 का नागरिक परमाणु समझौता इसमें मील का पत्थर साबित हुए। 21वीं सदी में चीन की बढ़ती हुई चुनौती दोनों देशों को साथ लेकर आई। आज ये संबंध रक्षा से पर्यावरण तक, व्यापार से तकनीक तक बहुस्तरीय हैं। लेकिन 2026 में कुछ स्पष्ट चुनौतियां हैं, जैसे ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीति ने टैरिफ बढ़ाए हैं, रूसी तेल खरीद पर दंड लगाया गया है और व्यापार असंतुलन पर जोर दिया गया है। 2026 की शुरुआत में भारत अमेरिका संबंधों में व्यापारिक तनाव चरम पर पहुंच गया है, जो मुख्य रूप से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति से उत्पन्न हुआ है। यह नीति अमेरिकी व्यापार घाटे को कम करने, राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने और वैश्विक व्यापार में पारस्परिकता सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर जो उच्च टैरिफ लगाए, जो रूसी तेल खरीद और द्विपक्षीय व्यापार असंतुलन दोनों से जुड़े हुए हैं। 2025 में ट्रंप ने भारत पर प्रारंभिक 25% पारस्परिक टैरिफ लगाया था, जो बाद में रूसी तेल आयात के कारण अतिरिक्त 25% दंड के साथ बढ़ाकर 50% कर दिया गया था। लेकिन नवीनतम समझौते फरवरी 2026 में इसको घटाकर 18% कर दिया गया है। ये टैरिफ भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से वस्त्र, रत्न, आभूषण, समुद्री उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल जैसे क्षेत्रों पर भारी पड़ा है। विश्लेषकों के अनुसार इन टैरिफ से भारतीय निर्यात में 2026 में 40 से 50% तक की गिरावट आ सकती है, जिससे जीडीपी वृद्धि पर 0.3 से 0.5% का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अमेरिका के साथ भारत का व्यापार घाटा 2024 में लगभग 46 बिलियन डॉलर था, जिसे ट्रंप ने प्रमुख मुद्दा बनाया था। हालांकि कुल द्विपक्षीय व्यापार 200 बिलियन डॉलर से अधिक पहुंच चुका है। रूसी तेल खरीद इस तनाव का प्रमुख कारण बना हुआ है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ने भारत को छूट पर तेल बेचा था, जिससे कि भारत का रूसी क्रूड आयात 2022 से 25 में 2.5% से बढ़कर 45% तक पहुंच गया। ट्रंप ने इसे अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन मानते हुए दंडात्मक कार्रवाई की। जनवरी 2026 में ट्रंप ने एक द्विदलीय विधेयक सैंक्शनिंग रशिया एक्ट को मंजूरी दी, जो रूसी ऊर्जा क्षेत्र से व्यापार करने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने का जिसमें प्रावधान था। हालांकि भारतीय रिफाइनरों ने आयात कम किया है और दिसंबर 2025 में ये 3 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर पहुंचा और जनवरी 2026 में 4 वर्षों का निम्न स्तर होने की संभावना है। रिलायंस जैसी निजी कंपनियां रूसी तेल की खरीद से पीछे हट गई हैं,
जबकि सरकारी रिफाइनरी अभी भी कुछ खरीद जारी रखे हुए हैं। फिर भी जैसे कोई पुराना दोस्त मुश्किलों में साथ निभाता है, वैसे ही ये रिश्ता मजबूत बना हुआ है। दोनों देश लोकतांत्रिक मूल्यों, वैश्विक स्थिरता और चीन के खिलाफ संतुलन के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक सहयोग। भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक सहयोग सबसे मजबूत कड़ी है, खासकर चीन की क्षेत्रीय दबंगई के जवाब में। कल्पना कीजिए, दो ऐसे देश जो समुद्र से लेकर आकाश तक मिलकर काम कर रहे हैं। ये न केवल सैन्य ताकत बढ़ाता है बल्कि शांति की गारंटी भी देता है। पूर्व उल्लेखित बुनियादी समझौते जैसे रक्षा क्षेत्र में लॉजिस्टिक एक्सचेंज समझौता, लिमुआ, कॉन्कासा, बेका, इनने इस सहयोग को संस्थागत रूप दिया है। ये समझौते लॉजिस्टिक सपोर्ट, सुरक्षित संचार और बेहतर भू स्थानिक खुफिया साझेदारी को संभव बनाते हैं, जिससे संयुक्त सैन्य अभियान आसान हो जाते हैं। 2026 में ये सहयोग और गहरा हुआ है। उदाहरण के लिए अक्टूबर 2025 में दोनों देशों ने 10 साल का नया रक्षा फ्रेमवर्क समझौता किया, जो खुफिया साझेदारी, तकनीकी सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देगा। ये समझौता इंडो पैसिफिक में संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। क्वाड देशों का मालाबार नौसैनिक अभ्यास, जिसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं, इसका जीवंत उदाहरण है। 2025 में गुआम के तट पर हुआ ये अभ्यास समुद्री जागरूकता और संयुक्त तैयारी को मजबूत करता है। एक कहानी की तरह सोचे तो जैसे चार दोस्त मिलकर एक बड़े खतरे का मुकाबला करते हैं, उसी प्रकार भारत अमेरिका संबंधों के ढांचों में संचालित बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास चीन से उत्पन्न उभरती रणनीतिक चुनौतियों के प्रति सामूहिक प्रतिक्रिया को दर्शाते हैं। ये अभ्यास न केवल सामरिक क्षमता और अंतर संचालनशीलता को सुदृढ़ करते हैं, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन, नियम आधारित व्यवस्था और दीर्घकालिक स्थिरता को भी मजबूती प्रदान करते हैं। रक्षा तकनीक में भी सहयोग बढ़ा है। उन्नत सैन्य हार्डवेयर का सह विकास स्थानांतरण रणनीतिक विकास को गहरा करता है। नवंबर 2025 में अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट और रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने भारत को $93 मिलियन के जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम और एक्सकैलिबर गाइडेड आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल की बिक्री को मंजूरी दी थी। साथ ही भारतीय नौसेना के MH-60R हेलीकॉप्टर के रखरखाव के लिए $1 बिलियन का अनुबंध किया गया है। ये सहयोग नेविगेशन की स्वतंत्रता की रक्षा करता है और क्षेत्रीय अस्थिरता को रोकता है। लेकिन चुनौतियां भी हैं। रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद पर अमेरिकी प्रतिबंधों की धमकी ने तनाव पैदा किया था, लेकिन दोनों देशों ने इसे मिलकर संभाला। कुल मिलाकर यह सहयोग दोनों देशों की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को मजबूत करता है। भारत भू राजनीतिक संरेखण। भारत और अमेरिका का भू राजनीतिक संरेखण वैश्विक चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण है। जैसे ये दोनों देश क्वाड जैसे मंचों पर काम करते हैं। क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का गठबंधन एक मुक्त, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक का प्रतीक है। इसका फोकस समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद रोकथाम, अवसंरचना विकास और मानवीय सहायता पर है। क्वाड ने 2026 में नई ऊंचाइयां छुई हैं। जनवरी 2026 में जापान और भारत ने आर्थिक सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में सहयोग बढ़ाने के लिए संवाद स्थापित किया, जो क्वाड का एक हिस्सा है। ठीक है, इसके साथ साथ भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच जलवायु और पर्यावरण सहयोग और जन जन संपर्क जैसे आयाम भी जुड़े हुए हैं। भारत अमेरिका द्विपक्षीय साझेदारी का एक सुदृढ़ आधार जन जन संपर्क है, जो केवल कूटनीतिक या सामरिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक आयामों से भी जुड़ा हुआ है। अमेरिकी मिशन के अनुसार लगभग 4 मिलियन भारतीय अमेरिकी नागरिक हैं, जो दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक सेतु का कार्य करते हैं। इन लोगों की उपस्थिति ने शिक्षा, नवाचार और उद्यमशीलता के क्षेत्रों में गहन प्रभाव डाला है और वे आधुनिक द्विपक्षीय संबंधों की आत्मा माने जाते हैं। उच्च कौशल वाले पेशेवरों के लिए H-1B वीजा कार्यक्रम में भारतीय प्रतिभाओं की प्रमुख भागीदारी रही है। हाल के वर्षों में भारतीय नागरिकों को लगभग 72.3% H-1B अनुमोदन प्राप्त हुए हैं, जो ये दर्शाता है कि दोनों अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने में ये कौशल आधारित पेशेवर गतिशीलता कितनी महत्वपूर्ण है। हालांकि हाल की अमेरिकी आव्रजन नीति में बदलावों ने H-1B और छात्र वीजा प्रक्रियाओं पर असर डाला है, जिससे संबंधित पेशेवरों और छात्रों की अनिश्चितता का सामना करना पड़ा है। ऐतिहासिक रूप से भी भारतीय अमेरिकी समुदाय की भूमिका संयुक्त रूप से उच्च शिक्षा, स्टार्टअप नेतृत्व, सांस्कृतिक आदान प्रदान और राजनीतिक भागीदारी तक विस्तारित रही है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि जन जन संपर्क भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की मूल शक्ति है। भारत अमेरिका सहयोग बहुआयामी और गतिशील साझेदारी के रूप में विकसित हुआ है, जो विभिन्न चुनौतियों
और मतभेदों के बावजूद निरंतर सुदृढ़ होती जा रही है। 2026 के परिप्रेक्ष्य में टैरिफ विवादों और नीतिगत असहमति के बावजूद रणनीतिक, रक्षा और तकनीकी सहयोग इस रिश्ते के मुख्य प्रेरक शक्ति बने रहेंगे। जिस प्रकार कोई मजबूत वृक्ष भीषण तूफानों में भी स्थिर रहता है, उसी प्रकार भारत अमेरिका संबंध वैश्विक स्थिरता, नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। भविष्य में व्यापक व्यापार समझौते, आपूर्ति श्रृंखलाओं का विविधीकरण और जन जन संपर्कों का विस्तार इस साझेदारी को और अधिक गहराई और स्थायित्व प्रदान करेगा। धन्यवाद। आपने टाइम भी बहुत लिया और बहुत सारे एंगल को आपने टच किया, जिसमें आपने बेसिकली 2016 के एग्रीमेंट, 18 का भी जो 2 ईयर पर जो एग्रीमेंट हो रहा था उसका आपने जिक्र किया। साथ ही अभी जो सिचुएशंस है, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सेकंड फेज में 66 इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे अपने आप को बाइकआउट किया है। अब वो बाइकआउट केवल इस देश पर किया कि उनको फंड देना हो रहा था, और एक तरफ ज्यादातर देशों के साथ में टैरिफ वार चल रहा है, और वहीं वो उन संस्थाओं से हट जा रहे थे कि जहां उनके ऊपर एक प्रेशर लग सकता है, कि जैसे कि अभी एक जिक्र हो रहा था कि जलवायु परिवर्तन, तो उन्होंने जलवायु के जो एग्रीमेंट है उनसे भी अपने आप को अलग किया। साथ ही 1945 से 1991 की जो हम बात उदारीकरण करते हैं, तो वहीं मैं एक चीज मैं जोड़ना चाहूँगा कि ग्लोबलाइजेशन उस समय आया, ग्लोबलाइजेशन से हम प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, हम वहाँ एक वर्ड सुन रहे होंगे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो वो क्या है कि वो ग्लोबलाइजेशन से दौर शुरू होता है और वो आज लोकलाइजेशन तक आ जाता है। तो जो लोकल जो चीजें हैं वो हम विश्व पटल पर कैसे प्रेजेंट करें, और जिससे कि धीरे धीरे करके हम अपना जो ट्रेड है उसको और इम्प्रूव करें। ये चीजें नेक्स्ट पार्टिसिपेंट या विद नेम नेक्स्ट। हाँ, फाइव मिनट होगा, आपको ऐसे इशारा दिया जाएगा। धन्यवाद सर, मंच प्रदान करने के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सम्मानित विद्वानगण, मेरा माय नेम इज अखिलेश कुमार फ्रॉम RSMPG कॉलेज धामपुर, बिजनौर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। मेरा जो टॉपिक जो है वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो रणनीतिक प्रतिद्वंदिता क्या है। तो जो 21वीं सदी का जो दौर है वो एक तरीके से भूसामरिक सदी का एक पर्याय समझकर चलते हैं। इसमें जो हिंद प्रशांत क्षेत्र के जो वैश्विक स्तर पर जो बढ़ते दबाव और राजनीतिक गतिविधियां सामुद्रिक सुरक्षा दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनकर उभरा है। यह क्षेत्र विश्व के प्रमुख क्षेत्रों और व्यापारिक मार्गों के आयात निर्यात लाइनों के सामरिक जलमार्ग का मुख्य केंद्र है। वर्तमान में जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियां और भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत की सागर पहल जापान, ऑस्ट्रेलिया की सक्रिय भूमिका ने इस भूसामरिक क्षेत्र का मंच प्रदान किया है। इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण समुद्री सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करना है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दावेदारी, जैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल और 9 डेज लाइन, जो कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। उसके विपक्ष में भारत की सागरमाला परियोजना है, और हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो हालिया वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्रीय भूसामरिक क्षेत्र बन गया है। यह हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र को संलग्न करता है, जो लगभग विश्व की 60% जनसंख्या और 65% विश्व के सकल घरेलू उत्पाद और 70% समुद्री व्यापार के घेरे हुए है। इस क्षेत्र में भौगोलिक स्थिति केवल आर्थिक दृष्टि से भूसामरिक दृष्टिकोण अत्यंत महत्व है। वैश्वीकरण, सामुद्रिक व्यापार की बढ़ती निर्भरता, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती शक्तियों की महत्वाकांक्षा ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बनता जा रहा है। विशेष रूप से चीन के आर्थिक सैन्य फैलाव और चीन सागर के आक्रामक रवैये, समुद्री अवसंरचना, कृत्रिम बंदरगाह जैसे सैन्य अड्डा स्थापित करना, जैसे सिटिया पोर्ट और बांग्लादेश का चित्तगोंग बंदरगाह और श्रीलंका का हम्बनटोटा, और अपने जो वहां पर जाकर के
सैन्य अड्डे स्थापित करता है और उनको इकोनॉमिक हेल्प करता है। उसके बाद में उनका जो अपनी जो विस्तारवादी नीतियां हैं उसको परिलक्षित करता है। एटी महान एक महान विद्वान है, भू राजनीतिक विद्वान है। उन्होंने कहा कि जो समुद्रिक शक्ति है वो एक विश्व को अगर कंट्रोल करना है तो समुद्रिक शक्ति को उन्होंने प्राथमिकता दी है। इसके साथ में बहुत अन्य सारे मतलब विद्वानगण है। उन्होंने कहा, जैसे रेटजेल महोदय, उन्होंने राज्य को जीवित रखने के लिए भू विस्तारवादी नीति को समर्थन किया। समकालीन साहित्य व्यक्त करता है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र केवल सैन्य प्रतिस्पर्धा के कहीं अधिक आर्थिक संपर्क, अवसंरचना विकास एवं मानकीय अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का मंच है। या कई विश्लेषणों से पुष्टि की गई है कि सुरक्षा और गैर पारंपरिक चुनौतियां जैसे समुद्री डकैती और अवैध मछली पालन और सागरीय प्रदूषण अध्यक्ष यह क्षेत्र सामरिकता की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है, जो विकसित और विकासशील देशों के मध्य अवस्थित है। उत्तर पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में संलग्न संयुक्त राज्य अमेरिका, मध्य लैटिन अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में संलग्न देश चीन, ताइवान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस, मध्य पूर्व प्रशांत महासागर, संलग्न इंडोनेशिया और सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया आदि। धन्यवाद। नेक्स्ट। यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य जनों को मेरा नमस्कार। मैं नमता जावेद, बरेली कॉलेज बरेली से विधि विभाग की छात्रा हूँ। ये मेरा पत्र का प्रथम प्रयास है। तो इसके सार के रूप में हम देखते हैं कि 21वीं सदी में वैश्विक शक्ति का संतुलन केंद्र धीरे धीरे अटलांटिक क्षेत्र से खिसककर हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थानांतरित हो रहा है। ये क्षेत्र न केवल विश्व के प्रमुख समुद्री व्यापार मार्गों और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं का आधार है, बल्कि वैश्विक सामरिक प्रतिस्पर्धा, आर्थिक हितों और भू राजनीतिक तनावों का भी प्रमुख केंद्र बन चुका है। समुद्री सुरक्षा की अवधारणा, जो पहले मुख्यतः नौसैनिक शक्ति और समुद्री सीमाओं की रक्षा तक सीमित थी, अब बहुआयामी स्वरूप ग्रहण कर चुकी है। इसमें आर्थिक सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून, जलवायु परिवर्तन और समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग भी सम्मिलित हो गया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता विशेष रूप से चीन की बढ़ती समुद्री और सैनिक क्षमताओं, दक्षिण चीन सागर और ताइवान जल मध्य जंबू में तनाव, अमेरिका की बदलती रणनीतिक प्राथमिकताओं और क्वाड जैसे बहुपक्षीय सुरक्षा ढांचों के उभार से स्पष्ट होती है। चीन की आक्रामक समुद्री नीति, जिसमें विमान वाहक पोतों का विस्तार, कृत्रिम द्वीपों का निर्माण और क्षेत्रीय प्रभुत्व की आकांक्षा शामिल है, क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती को प्रस्तुत करता है। इसके प्रत्युत्तर में अमेरिका और इसके साझेदार नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था तथा नौवाहन की स्वतंत्रता पर बल दे रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में भारत की भूमिका विशेष महत्व रखती है। भारत की समुद्री नीति सहयोग, समावेशिता और साझा समृद्धि के सिद्धांत पर आधारित है, जिसे हम SAGAR सागर से डिनोट करते हैं। इस पत्र में समुद्री सुरक्षा की अवधारणा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक महत्व, प्रमुख शक्तियों की भूमिका, भारत की समुद्री रणनीति और ब्लू इकोनॉमी के संभावनाओं का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन का निष्कर्ष ये है कि हिंद प्रशांत को केवल शक्ति प्रतिस्पर्धा के चश्मे से देखा गया तो ये क्षेत्र संघर्ष का केंद्र बन सकता है, किंतु सहयोग, नियमाधारित शासन और सतत विकास के माध्यम से इसे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि का आधार भी बनाया जा सकता है। इसकी भूमिका के रूप में हम देख सकते हैं कि समुद्र मानव सभ्यता के विकास का मूल आधार रहे हैं। प्राचीन काल से ही व्यापार, संस्कृति, आदान प्रदान और राजनीतिक संपर्क समुद्र के मार्गों के माध्यम से संभव हुए हैं। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी समुद्रों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज विश्व व्यापार का अधिकांश भाग समुद्री मार्गों से संचालित होता है और वैश्विक ऊर्जा की आपूर्ति भी इन्हीं मार्गों पर निर्भर करती है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में इस संदर्भ में विशेष महत्व रखता है। ये क्षेत्र न केवल दो महासागरों को जोड़ता है, बल्कि एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीपों के आर्थिक और सामरिक हितों को भी आपस में जोड़ता है। जैसे जैसे एशियाई अर्थव्यवस्था वैश्विक विकास की धुरी बन रही है, वैसे वैसे इस क्षेत्र की रणनीतिक महत्वता भी बढ़ती जा रही है। परिणाम स्वरूप ये क्षेत्र प्रमुख शक्तियों के बीच रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता का केंद्र बन गया है। समुद्री सुरक्षा की अवधारणा के रूप में परंपरागत रूप से समुद्री सुरक्षा को सैन्य दृष्टि से देखा जाता था। इसका उद्देश्य समुद्री सीमाओं की रक्षा, शत्रु नौसेनाओं से सुरक्षा और समुद्री लुटेरों को नियंत्रित करना था, किंतु वैश्विक और तकनीकी विकास के साथ ये अवधारणाएं व्यापक हो गई हैं।
इसमें हम आर्थिक सुरक्षा में समुद्री व्यापार, बंदरगाहों और आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा शामिल कर सकते हैं। ऊर्जा सुरक्षा तेल और गैस के समुद्री परिवहन को निर्बाधता प्रदान करती है। पर्यावरणीय सुरक्षा में समुद्री प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और समुद्री जैव विविधता की रक्षा करना। मानव सुरक्षा समुद्री आपदाओं, अवैध मछली पकड़ना और मानव तस्करी से निपटना है। इस प्रकार समुद्री सुरक्षा अब केवल सैन्य शक्ति का प्रश्न नहीं रह गई है, बल्कि समग्र सुरक्षा की अवधारणा बन चुकी है। यदि हम इसके रणनीतिक महत्व को देखें तो हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व की लगभग 1/3 जनसंख्या का निवास स्थान है और वैश्विक जीडीपी का बड़ा हिस्सा यहीं से उत्पन्न होता है। मलक्का, जलमध्य डंबू जैसे चोक पॉइंट से होकर विश्व का एक बड़ा भाग ऊर्जा और व्यापार का प्रवाह करता है। किसी भी प्रकार का अस्थिरता या संघर्ष इन मार्गों को प्रभावित कर सकता है। इसका प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसके अतिरिक्त ये क्षेत्र सैन्य दृष्टि से भी अत्यंत संवेदनशील है। दक्षिण चीन सागर और ताइवान जलमध्य डंबू जैसे क्षेत्र न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए भी निर्णायक हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता के रूप में चीन ने पिछले कई दशकों में अपनी नौसैनिक क्षमताओं का तीव्र विस्तार किया है। विमान वाहक पोतों, उन्नत पनडुब्बियों और लंबी दूरी की मिसाइल प्रणालियों के विकास ने इसे एक प्रमुख समुद्री शक्ति बना दिया है। दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीपों को सैन्यीकरण और ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास इसकी क्षेत्रीय प्रभुत्व की आकांक्षा को दर्शाते हैं। वहीं अमेरिका स्वयं को हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता का संरक्षक मानता है। हालांकि हाल के वर्षों में उसकी नीतियों में कुछ अनिश्चितता दिखाई दी है, फिर भी चीन को वे अपनी मुख्य रणनीतिक चुनौती मानता है। वहीं क्वाड का उद्देश्य भी किसी देश को घेरना नहीं बल्कि एक स्वतंत्र और खुला और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करना है। ये मंच समुद्री सुरक्षा, आपदा राहत और तकनीकी सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस क्षेत्र में हम अगर भारत की भूमिका देखें तो भारत ऐतिहासिक रूप से एक समुद्री सभ्यता रहा है। इसकी भौगोलिक स्थिति उसे हिंद महासागर में स्वाभाविक बढ़त प्रदान करती है। भारत की समुद्री नीति सहयोग और जिम्मेदारी पर आधारित है। इस क्षेत्र में मुख्य चुनौतियों में हम सैन्यीकरण, पर्यावरणीय क्षरण और छोटे द्वीपीय देशों की असुरक्षा शामिल कर सकते हैं। वहीं संभावना में भारत तकनीकी और नवाचार में एक जिम्मेदार भूमिका निभा सकता है। धन्यवाद। आपने जो रिसर्च पेपर इंट्रोड्यूस किया उसमें आपने इतने सारे एंगल्स को विभिन्न 5 मिनट टच किया। आपने पार्ट के बारे में, ब्लू इकोनॉमी, हिंद महासागर क्षेत्र में जहाँ समुद्री लुटेरे की बात हो रही है और सागर परियोजना की जहाँ बात हो रही है, बहुत अच्छा मतलब कम समय में सारे एलिमेंट्स को टच किया। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट A very warm good morning to my respected professors, chief guests and students. My name is Jasmine Kaur and I belong to the Department of Political Science, Bareilly College. Today I will be presenting my topic on cyber security, electronic warfare and space technology, the emerging architecture of modern warfare and national security. When we think of war, we usually imagine soldiers, tanks and weapons. However, in the 21st century, warfare are no longer limited to land, air and water. Today, conflicts are also fought through computers, electronic signals, and satellites in space. Countries now depend heavily on digital networks, communication systems, and space-based technologies for governance, economic stability, and defense. A cyber attack can disrupt power grids or banking systems. Electronic warfare can block radar and communication signals. Space technology supports navigation, intelligence, and military coordination. But these systems can also be targeted and disrupted. In today's geopolitical environment, security is not only about the number of soldiers, but about technological integration. The further battlefield is invisible. It exists only in codes, frequencies, and orbits. The nation that masters cybersecurity, electronic warfare, and space technology will not only win the wars, it will shape global powers as well. These domains represent a shift from territorial bounded conflict
toward information-centric, technologically mediated competition. Control over digital networks, electromagnetic signals, and space-based infrastructure determines strategic advantages. Understanding these strategic implications requires moving beyond traditional security to embrace multidimensional network approaches to defense and diplomacy. Future stability will depend not only on military strength but also on cyber resilience, spectrum control, and responsible space stewardship. At last, I would like to conclude by saying that the wars of tomorrow may not begin with the bombs, but with the line of codes, a disrupted signals, and a disabled satellite. Thank you very much. Thank you, Jasmine, to that space technology and cyber security. Cyber security, इनविजिबल सोल्जर. आप एक सोल्जर है, उसको आप देख के हिट कर सकते हैं, या कोई भी थ्रेट है. ये एक ऐसा थ्रेट है, हमें पता है. अभी हम यहाँ इतने पार्टिसिपेंट सब लोग बैठे हैं, अभी किसके साथ एक साइबर फ्रॉड हो जाए हमें नहीं पता है, और हम उससे बहुत अभी कम अवेयर है. गवर्नमेंट उसके लिए कार्य कर रही है. और मैं एक अभी जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड अभी जो अपने इंडिया का स्ट्रक्चर है, वो बहुत कहने में कोई द्वारा नहीं कि वो बहुत लोअर लेवल में काम कर रहा है. क्योंकि 1 लाख पर अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 12 या 13 ओनली जो इंजीनियर्स कर लीजिए या सोल्जर्स कर लीजिए, तो वो वर्क कर रहे हैं पर 1 लाख पॉपुलेशन का. और जबकि ये 100+ होना चाहिए था. तो आपने बहुत शॉर्ट टाइम में और बहुत अच्छा चीज़ें करते हैं. नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है सक्षम. गुड मॉर्निंग एवरीवन. मेरा नाम सक्षम कुमार है. मैं शोध छात्र हूँ, राजनीति विज्ञान विभाग, बरेली कॉलेज, बरेली. मेरे रिसर्च पेपर का शीर्षक है योग का वैश्विक प्रभाव, भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों में सॉफ्ट पावर की भूमिका. यह शोध पत्र समकालीन कूटनीति के संदर्भ में भारत की सॉफ्ट पावर के रूप में योग के वैश्विक प्रसार का विश्लेषण कर रहा है, जिसमें मुख्य ध्यान संयुक्त राज्य अमेरिका पर केंद्रित है. प्राचीन भारतीय सभ्यता की धरोहर योग आज केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास न रहकर एक वैश्विक जीवन शैली और आर्थिक शक्ति बन चुका है. प्रस्तुत शोध में इस बात का परीक्षण किया गया है कि कैसे 1893 में स्वामी विवेकानंद के शिकागो आगमन से लेकर और वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक योग ने अमेरिका में भारत की एक शांति प्रिय और ज्ञानवान राष्ट्र की छवि निर्मित की है. अध्ययन दर्शाता है कि अमेरिका में योग का बढ़ता बाजार लगभग $12 बिलियन और वहां के स्वास्थ्य क्षेत्र में इसकी स्वीकार्यता ने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक सेतु का कार्य किया है. शोध के निष्कर्ष ये रेखांकित करते हैं कि राजनीतिक और रणनीतिक उतार चढ़ाव के बावजूद योग ने पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट यानी कि जन स्तर पर जुड़ाव को मजबूत कर भारत अमेरिका संबंधों को एक नई गहराई प्रदान की है. यह शोध पत्र इस बात की भी पुष्टि करता है कि योग भारत की सबसे सफल सांस्कृतिक कूटनीति का उदाहरण है. सॉफ्ट पावर की आधुनिक अवधारणा जिसे जोसेफ ने प्रतिपादित किया था, इस विचार पर आधारित है कि एक राष्ट्र की वैश्विक शक्ति केवल उसकी सैन्य क्षमता या आर्थिक संपदा ही नहीं, बल्कि उसकी सांस्कृतिक अपील और नैतिक मूल्यों से भी निर्धारित होती है. भारत के संदर्भ में योग इस सॉफ्ट पावर का सबसे प्रखर और प्रभावशाली उदाहरण बनकर उभरा है. भारतीय सभ्यता की ये प्राचीन धरोहर वर्तमान में वैश्विक स्वास्थ्य, अध्यात्म और जीवन शैली का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है. भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों में योग ने एक सांस्कृतिक सेतु के रूप में कार्य किया. जहां अमेरिका वैश्विक पटल पर एक प्रमुख आर्थिक और तकनीकी शक्ति है, वहीं भारत ने योग के माध्यम से अमेरिका के सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में अपनी उपस्थिति दर्ज की है. 1893 में शिकागो के विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के उद्बोधन से शुरू हुई यह यात्रा आज अमेरिका समाज के हर वर्ग तक पहुंच चुकी है, जहां लगभग 3.6 करोड़ से अधिक अमेरिकी नियमित रूप से योग अभ्यास करते हैं. प्रस्तुत शोध पत्र का यह मुख्य उद्देश्य यह विश्लेषण करना है कि कैसे योग ने अमेरिका में भारत की एक शांति प्रिय और ज्ञान आधारित राष्ट्रीय छवि निर्मित की है. यह अध्ययन इस बात का भी परीक्षण करता है कि क्या योग का यह वैश्विक प्रभाव केवल एक व्यापारिक गतिविधि है या यह भारत की सांस्कृतिक कूटनीति कल्चर डिप्लोमेसी का एक संयुक्त
सशक्त माध्यम है जिसने अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्र के साथ भारत के सामरिक और रणनीतिक संबंधों की एक मनोवैज्ञानिक मजबूती प्रदान की है। निष्कर्ष यह स्पष्ट करता है कि योग वर्तमान युग में भारत की सॉफ्ट पावर का सबसे प्रभावी और सफल उपकरण बनकर उभरा है। अमेरिका जैसे भौतिकवादी और तकनीकी प्रधान समाज में योग की व्यापक स्वीकार्यता यह दर्शाती है कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर में वैश्विक समस्याओं, विशेषकर मानसिक स्वास्थ्य और जीवन शैली जनित रोगों को समाधान प्रदान करती है। भारत अमेरिका संबंधों के परिप्रेक्ष्य में योग ने केवल एक व्यायाम के रूप में नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक कूटनीति के माध्यम से दोनों देशों के नागरिकों के बीच भावनात्मक और वैचारिक जुड़ाव पैदा किया है। जहां पारंपरिक कूटनीति सरकारों तक सीमित रही है, वहीं योग ने अमेरिका के सामान्य नागरिकों के मन में भारत के प्रति सम्मान और आकर्षण भी विकसित किया है। हालांकि योग के बढ़ते व्यवसायीकरण और इसके मूल स्वरूप के साथ होने वाले प्रयोग भविष्य में भारत के लिए सांस्कृतिक विनियोग, कल्चरल एप्रोप्रिएशन जैसी चुनौतियां पेश कर सकते हैं। इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जैसी पहलों ने वैश्विक स्तर पर योग के भारतीय मूल को पुनः स्थापित किया है। अतः योग भारत के लिए एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसके बिना किसी सैन्य या आर्थिक दबाव में भारत की साख को एक विश्व गुरु और शांति के रूप में सुदृढ़ किया गया है। धन्यवाद। थोड़ा हमारे पास टाइम कम है क्योंकि अभी मुझे जो लीडरशिप मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ कि 12 o'clock चेयरपर्सन मैम ने बोला कि 12 o'clock का वैलिडेटरी सेशन स्टार्ट होना है। और अभी सक्षम ने 1893 से अपनी बात को कहना शुरू किया कि जब वो शिकागो में बोल रहे थे कि उन्होंने जहाँ से बोलना शुरू किया विवेकानंद जी ने, और ये भाइयों बहनों, और वो भाइयों बहनों वो आज के दौर में भी आप देख रहे होंगे वो भाइयों बहनों ही चल रहा है। और दूसरा क्योंकि योग एक वो माध्यम है, वो बेसिकली योग की जो क्रिया है वो अपने आप में हमें सॉफ्ट बनाती है। हम जनरली घर में अगर देख रहे हैं कोई बहुत अग्रेशन व्यक्ति हो और आप उसको कहिए कि आप वो योग करें तो वो कुछ ऑटोमेटिकली आफ्टर 15 डेज या 20 डेज आपको देखेंगे वो सॉफ्टनेस उसके अंदर आ जाती है। और भारत में हमेशा से योग रहा है, भारतीय सॉफ्ट है, और उसी के ही एक परिणाम है कि आज हमने अपनी जो एक प्राचीन पद्धति है योग, जो कि एक चिकित्सा की एक पद्धति भी कहेंगे उसको, हमने इंट्रोड्यूस किया और आज वो विश्व के सारे देश उसको फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जो अपना पेपर प्रेजेंट करना चाहेंगे। 2 से 3 मिनट है दोनों लिस्ट बता देना। हाँ ठीक है। नाम क्या है आपका? बीरेश कुमार। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम बीरेश कुमार है। मैं शोध छात्र हूँ बरेली कॉलेज बरेली, रक्षा अध्ययन विभाग से। मेरा टॉपिक है भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों को साधने में खुफिया एजेंसियों की भूमिका। जैसे कि देखा गया है, भारत लगातार कई युद्धों का सामना किया है। भारत में मैक्सिमम तौर पे देखा जाए तो 5 युद्ध हुए। उन युद्धों को पहले से हम किस हिसाब से अपनी सूचनाओं को एकत्रित करके युद्धों को जीतने में सफल बनाने के लिए सूचनाओं का महत्वपूर्ण योगदान लेते हैं, और कहते हैं कि सूचनाएं जिस देश के पास होती हैं वो देश अग्रिम जीत के लिए हासिल करता है। भारत में खुफिया तंत्र का विकास देखा जाए तो वैदिक काल, महाकाव्य काल और मौर्य काल, गुप्त काल, इन फेजेस में किया गया है। और सूचनाएं मजबूत बनाती हैं, जैसे सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हितों को साधने में, और राष्ट्र के उच्चतम पदों पर जो व्यक्ति बैठते हैं उनकी सुरक्षा में, राष्ट्रीय सुरक्षा के संभावित खतरों से अवगत कराने में, युद्ध से पूर्व की तैयारी है, युद्ध के दौरान संभावित सूचनाओं को अवगत कराने में। कहा जाता है कि राजीव गांधी जी की जो अटैक हुआ था उसके असेसन के बारे में जानकारी पहले से थी, इंदिरा गांधी के में भी पहले से थी, लेकिन उस सूचनाओं को हम सही से फॉलो नहीं कर पाए, जिसके कारण हमने जो अच्छे व्यक्ति थे उनको खोया। भारत की सुरक्षा आवश्यकता एवं उसकी राष्ट्रीय सूचनाओं की रणनीति में, जैसे जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की समस्या, पूर्वोत्तर भारत में अलगाववाद की समस्या, आतंकवाद की समस्या, स्लीपर सेल्स ऐसी चीज होती है, जैसे किसी को कोई कहा जाता है 2008 में एक अटैक हुआ था दिल्ली में, जो अभी अटैक हुआ था वो सब स्लीपर सेल्स के माध्यम से होता है। इनको जब टारगेट मिलता है ये एक्टिवेट होते हैं, टारगेट पूरा हो जाता है डीएक्टिवेट हो जाते हैं। साइबर सुरक्षा एवं संबंधित मुद्दे भी इससे संबंधित रहते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा की चुनौतियां होती हैं, जैसे बांग्लादेश है, नेपाल है, इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, और सैन्य रणनीति बनाने में भी साथ देती है, सुरक्षा नीति बनाने में भी देती है।
थैंक यू। जी थैंक यू आपने, क्योंकि ये हमारे पास समय कम था। नो डाउट आप बहुत अच्छा आप पेपर प्रेजेंट करते हैं, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है जो जिस सीक्वेंसिंग के साथ में आपने देना शुरू किया। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। उपस्थित सभी विद्वानजनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अचंद्र सिंह है। मैं बरेली कॉलेज रक्षा अध्ययन विभाग में शोधरत हूँ। मेरा शोध पत्र है भारत की समुद्री सुरक्षा नीति और इंडो पैसिफिक की में उसकी रणनीतिक भूमिका। भारत की समुद्री रणनीति हिंद महासागर क्षेत्र में अपने हितों को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खास तौर पर बढ़ते भू राजनीतिक प्रतिद्वंदता के बीच ये पेपर भारत की वर्तमान समुद्र नीतियों से महान शक्तियों की प्रतिस्पर्धा के उत्पन्न चुनौतियों को जांच करता है। चक्रव्यूह नौसैनिक रणनीति के माध्यम से एक अद्वितीय प्राचीन ज्ञान आधारित दृष्टिकोण का प्रस्ताव करता है। महाभारत की त्वरित युद्ध संरचना से प्रेरित यह रणनीति पारंपरिक भारतीय रणनीतिक सोच को समुद्री कूटनीति, निगरानी और रक्षा प्रौद्योगिकियों जैसे आधुनिक उपकरणों के साथ मिलती है। यह योजना में उपग्रह और ड्रोन ट्रैकिंग, साइबर सुरक्षा, तेज प्रक्रिया दल और एआई संचालित सिस्टम शामिल है। ये आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है, क्वाड और आईओएनएस जैसी मजबूत क्षेत्रीय साझेदारी बनाता है तथा प्रभुत्व के बजाय स्मार्ट टीम आधारित सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। भारत की सभ्यगत लोकचार में निहित यह पारदर्शिता, शक्ति, रणनीति और नैतिकता पर जोर देता है और चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स ऑफ एक गतिविधि विकल्प प्रदान करता है। ये पेपर भारत की समुद्री सुरक्षा में नेतृत्व करने की मदद में ये लिस्ट स्पष्ट नीति सुझाव भी देता है। भारत की मौजूदा समुद्री सुरक्षा ढांचा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती भू राजनीतिक सक्रियता के बीच भारत अपने क्षेत्र समुद्री ढांचे के आधुनिक और विस्तार करने हेतु कई निर्णायक कदम उठाए हैं। यहाँ ढांचा केवल सैन्य क्षमताओं तथा सीमित नहीं है, बल्कि नीतिगत सिद्धांतों, संस्थागत व्यवस्थाओं, निगरानी प्रणालियों और बहुपक्षीय साझेदारियों में समाहित करता है। ये सभी तत्व मिलकर एक ऐसा विकसित होता समुद्री पर्यावरण बनाते हैं जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर भारत के समुद्री हितों में रक्षा करना है। भारत की समुद्री थैंक यू सर। आपने एक नया शब्द अभी यूज किया इतने पेपर प्रेजेंट हुए, अभी उन्होंने किसी ने भी अभी एआई के बारे में बात नहीं किया। आपने जो मैरीटाइम सिक्योरिटी में एआई को कैसे इंट्रोड्यूस होंगे आपने उसके ऊपर बात की। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट आइए। A very good morning to all of you, dignitaries, professors, research scholars, and others. Though it is going to give you a good afternoon after 12 minutes, I just wanted to start with अभी सर ने कहा कि जैसे 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी, यानी अपने बुद्धन को उन्होंने जो स्टार्ट किया था वो भाई और बहनों से स्टार्ट किया था। उन्होंने कहा था डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ये उस समय की बात थी जब अमेरिका के अंदर यूनिवर्सल सफराज का सिस्टम भी नहीं था, वहां पर चुनाव लड़ने के लिए या चुनाव में वोट डालने के लिए महिलाओं को अधिकार भी नहीं था। ये उस समय की बात है, इसीलिए उसको बहुत ज्यादा अमेरिका को इससे प्रेरणा मिली। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, हालांकि मेरा एक पूरा पेपर इस पर है और पीपीटी भी है, लेकिन समय कम है, इसलिए यहाँ इंडिया यूएस कोऑपरेशन प्रेजेंट ग्लोबल सिनेरियो की बात हो रही है। जहां तक जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो मुझे लगता है कि कोऑपरेशन जैसा कोई शब्द यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। इट इज ओनली बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। और कोऑपरेशन की अगर आप बात करेंगे तो कोऑपरेशन विद थ्रेट, कोऑपरेशन विद थ्रेट, वॉट एवर इज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड यू कैन सी, whether it is USA, whether it is China or any other country, if they are strong, they will threat you. और कोऑपरेशन जो होगा वो केवल थ्रेट के बेस पे होगा, पावर के बेस पे होगा। ये हम अभी से नहीं, ये हम पुराने समय से देखते आ सकते हैं। जब से राज्य रजवाड़ों का शासन था, उन्होंने अपनी पावर के बल पे क्या किया था, राज्यों को मिलाया था। उसके बाद में उन्होंने कोऑपरेशन भी किया, जैसे कि अकबर ने जो है वो विवाह किया, आप जानते हैं हिंदू रानियों से, वो भी किसके बेस पर था, वो भी इसी बल के बेस पर था। किसके बेस पर?
जो शक्ति थी उसकी बेस पर। उसके बाद हम अगर आते हैं तो आप देखें चंगेज खान का जो शासन था वो भी ऐसा ही था। उसके बाद आप आइए तो फिर आप अमेरिका की इसकी बात कर लीजिए, ब्रिटेन की बात कर लें, स्पेन की बात कर लें, पुर्तगाल की बात कर लें, ये सारे के सारे जो इन्होंने अपना फैलाया है चक्रव्यूह पूरे देश पूरे दुनिया में, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ इनकी शक्तियां थी। और आगे इसके आगे अगर हम लोग आ जाते हैं तो फिर आप उसके बाद वर्ल्ड वॉर्स की हम लोग बात कर सकते हैं। बस मेरा इतना कहना है, पेपर तो पूरा प्रेजेंट करने का अवसर नहीं है, लेकिन इतना कहना है कि बस की कॉपरेशन नाम का कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता जियो पॉलिटिक्स में। अगर कॉपरेशन करना भी है तो कॉपरेशन विद थ्रेट है, देयर इज नथिंग एल्स एक्सेप्ट। थैंक यू। एक इंटरनेशनल में डेफिनेशन है कि देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड एंड देयर इज नो परमानेंट एनिमी। मतलब कभी भी आपके कोई परमानेंट मित्र नहीं है और शत्रु नहीं है। तो वही और कॉपरेशन वही हो सकता है कि जहां आपकी संबंध बहुत अच्छे चल रहे हो, जहां हमेशा खटास हो वहां पर संबंध बेहतर नहीं होते। और जो आपका जो पेपर है इससे रिलेटेड मोनिस अब्बास ने है यहाँ सर ने उस सारी चीजों को उसमें अपने पेपर में जिक्र किया था कि पीस और थ्रेट्स एक साथ नहीं चल सकते। हाँ यस। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। अब हम अपने टेक्निकल सेशन को अंतिम की ओर चल रहे हैं और मैं जो फर्स्ट स्पीकर हैं प्रोफेसर भूपेंद्र सिंह सर कॉमर्स डिपार्टमेंट से हैं, बरेली कॉलेज बरेली से। सर से रिक्वेस्ट करूंगा सर आइए और आप अपने ज्ञान से हमें थोड़ा अभिहित कीजिए। और सर जो रेस्ट्रिक्शंस मेरे एज ए कोर्स कोऑर्डिनेटर मेरे जो पेपर प्रेजेंटेशन पर थी सर टाइम बाउंड की, वो सर आपके साथ ही रहेगी। सर्वप्रथम ज्ञान की देवी मां शारदे को नमन। श्रद्धेय मंच पर उपस्थित हमारे चेयरपर्सन प्रोफेसर नीरजा साना जी, स्पीकर्स प्रोफेसर नवीन वर्मा जी, कोऑर्डिनेटर अक्षय कुमार जी, और सबसे साधुवाद के पात्र यथार्थ गौतम जी जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, जिन्होंने इतनी अच्छी ये सेमिनार ऑर्गेनाइज करी नेशनल लेवल की। और सेमिनार के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर एमपी सिंह सर, यहाँ उपस्थित हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ हमारे शिक्षक साथी, रिसर्च स्कॉलर्स, डेलीगेट्स, आप सबको सादर वंदन। मैं भी यही वर्ड पहले पढ़कर बताना चाह रहा था कि जो आपका प्रेजेंट ग्लोबल सिनेरियो में कोऑपरेशन वर्ड है इंडिया यूएस का, तो शुरुआत विकास से नहीं करी, कहना मैं भी यही चाह रहा था। हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर विश्वास रखने वाले हैं, और तो यहां कोऑपरेशन वर्ड का तो जिक्र ही नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि अगर हम यहां पर वर्ड भी अगर इंडिया यूएस है, मतलब एक तरीके से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, लेकिन हम वर्ड में इसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नाम की जगह सबसे ज्यादा ट्रम्प वर्ड चल रहा है। मतलब अगर पूरे विश्व का जो सबसे बड़ा गुंडा है, मैं गलत वर्ड यूज कर रहा हूं, तो वो कौन है इस समय? ट्रम्प का टैरिफ वार वो ये चल रहा है। तो जहां उसने भारत जो डेट इकोनॉमी वर्ड भी यूज करा कि यहां की अर्थव्यवस्था कैसी है, मृत अर्थव्यवस्था है, लेकिन हम उस देश के लोग हैं जो आपदा में अवसर देखते हैं। उसने हम पर ये 50% का टैरिफ लगाया, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि हमको स्वदेशी को अब अपनाना है, हमें मुंह तोड़ जवाब उन्हें कैसे देना है, स्वदेशी के साथ। हम तो कृषि प्रधान देश कहा जाता था, लेकिन हम कृषि प्रधान देश नहीं है, कृषि उद्योग प्रधान देश है। एग्रीकल्चर जरूर है, लेकिन वो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज है हमारे पास। और जैसा कि वन सिटी वन प्रोडक्ट, ये अभी जो पिछले कई सालों से चलता चला आ रहा है, इसको बेस में रखते हुए, स्वदेशी को अपनाते हुए हम एक सशक्त भारत, समृद्ध भारत, स्वावलंबी भारत का कैसे निर्माण करें, इस ध्येय के साथ हमें काम करना है। और कभी कभी वक्त परिस्थितियां आ जाती हैं, पुराने समय की परिस्थितियों को छोड़ दें, जो पिछला समय था, अब हम किसी भी देश में, हम हर क्षेत्र में अग्रणी होते चले जा रहे हैं। ये भी परेशानी है एक अमेरिका की। पहले अगर हम देखें तो जो छोटे छोटे देश थे, वो नासा की तरफ एक आस भरी निगाहों से देखते थे कि कैसे उनके सैटेलाइट लॉन्च हो, वो अमेरिका से अपील करते थे। लेकिन आज इसरो
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इतना सशक्त हो गया कि एक ही दिन में एक साथ 108 सैटेलाइट वो लॉन्च करता है। हम मंगल मिशन की बात करते हैं, हम चांद पर जाते हैं। ये भी एक उनकी जेलसी का कारण है कि भारत कैसे हर क्षेत्र में स्वावलंबी होता जा रहा है, हर क्षेत्र में कैसे बढ़ रहा है, चौथी आर्थिक महाशक्ति बनते चले जा रहे हैं हम। ये भी उनकी परेशानी का कारण है। आज कोई देश हमारी तरफ आंख उठाता तो उसको उसके घर में घुसकर मारते हैं, चाहे वो कभी की घटना हो। अगर आप अभी ऑपरेशन सिंदूर देखें, हमने उनको उनके घर में घुसकर मारा। हाँ, उसके बाद हम लोगों ने पूरा हमला नहीं किया तो बहुत सारा नुकसान हो सकता था, आर्थिक भी, जनशक्ति का भी। तो इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भी कुछ डिसीजन लिए जाते हैं। और जब ट्रंप ने टैरिफ वार खेला, टैरिफ लगाया, तो कुछ शांत रह के, कुछ संयम के साथ काम करा। और आज आप देख रहे हैं कि उसको अपना डिसीजन वापस लेना पड़ा। 60 बार 60 टाइम उसने अपना टैरिफ को चेंज करा। आज अगर आप देखेंगे तो कुछ समय के पश्चात अमेरिका वासियों को भी इस बात का अफसोस होगा कि किसी बेवकूफ को उसने, सिर्फ व्यापारी है, ओनली व्यापारी हो, वो अमेरिका का विकास भी नहीं चाहता। वो चाहता है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाऊं। उस एलन मस्क को भी उसने अपने साथ से हटा दिया, जिस एलन मस्क ने उसको राष्ट्रपति बनाने में एक बड़ी अहम भूमिका निभाई, और उसी बिजनेस डील्स के कारण उसे भी अपने साथ से हटा दिया। तो अमेरिका के जो नागरिक हैं, मुश्किल से 30-32% नागरिक उसके साथ हैं। हो सकता है कि मिड टर्म इलेक्शन हो और वो फिर अगला राष्ट्रपति ना रहे। आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे पेपर्स प्रेजेंट करे, बहुत सारे उसमें निचोड़ भी निकल कर आएगा, समरी भी निकल कर आएगी, सार भी निकल कर आएगा, और वो गवर्नमेंट तक वो पेश भी किया जाएगा। और हो सकता है हम अगर अभी थोड़ा और शांत होकर बैठे तो देखिए वक्त परिस्थितियां सब बदलेंगी, फिर से भारत सिरमौर होगा और वो अपना परचम फिर विश्व में लहराएगा। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। अभी मेरा ज्ञान इतना बड़ा नहीं है कि मैं आपके स्पीच को कंक्लूड कर सकूं, और मैं नेक्स्ट अपने स्पीकर प्रोफेसर नवीन वर्मा सर से आग्रह करूंगा कि सर जैसा भूपेंद्र सर के साथ जो शब्द थे वो सर आपके साथ भी हैं, उससे कम समय क्योंकि सर नहीं मैम, एक्चुअली में क्या है ना कि सर का मैं स्टूडेंट रहा हूँ मेरा कॉलेज में, तो गुरुजी से आग्रह करना तो और रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन, स्पीकर, सेशन कोऑर्डिनेटर अक्षय जी, टीचर्स, distinguished guests, dear students and media persons. शायर के क्षेत्र में है, शायर के नगर में है, तो बशीर बद्र साहब एक शायर हुआ करते थे। उनकी एक शायरी है जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस को काफी परिभाषित करती है, और वह शायरी है कि कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासलों से रहा करो। तो भारत अमेरिका संबंधों में अगर हम उठा करके देखें तो यही चरित्रार्थ होता है। और इंडो यूएस रिलेशंस फेस्ड मेनी अप्स एंड डाउन देन अप्स। लेटेस्ट में ही अगर हम उठा करके देखें तो जितने चेंजेस हुए हैं, अभी सुबह मैं उठा जो है तो मैंने देखा जो है कि खामनेई का खात्मा हो चुका है, खामनेई का खात्मा हो चुका है। तो पूरा विश्व इस समय जल रहा है, और जल क्यों रहा है? क्योंकि एक व्यक्ति की हठधर्मिता के कारण पूरा का पूरा संसार जो है वह जो है अपने हिसाब से जो है हिंसाग्रस्त हो चुका है। और मिस्टर ट्रंप की जहां तक बात है, यहाँ तो बहुत सी बातें हो चुकी, बहुत से वक्ताओं ने अपने अपने जो है बातों को कहा जो है, लेकिन ट्रंप की हठवादिता जो है, हठधर्मिता जो है, वह पूरे विश्व को जो है इफेक्ट डाल रही है। तो समय चूंकि कम है, बोलने के लिए बहुत ज्यादा है, तो समय के अभाव के देखते हुए मैं अपनी बात को यहीं पे विराम कर रहा हूं। और साथ ही आगे की कड़ी के लिए मैं कोऑर्डिनेटर
अक्षय जी से कहना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी पीपीटी तैयार की है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि उनका भी प्रेजेंटेशन हो, भले ही समय की सीमा जो है ये थोड़ी सी अपनी बढ़ा ले, मैंने कम कर दिया और ये बढ़ा ले, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, क्योंकि आपने सर कहा है, लेकिन उधर यशाद सर ने मुझे बोला है कि सर 12-10 लास्ट होना चाहिए। तो मैं सर सॉरी कहूँगा, क्योंकि मेरी फिर प्रेजेंटेशन के लिए मुझे पूरा प्रोजेक्टर और सारी चीज़ें ऑन करनी पड़ेंगी। तो मैं सर इसके लिए सॉरी हूँ। मैं नेक्स्ट कभी मुझे जब मौका मिलेगा मैं अपने हाँ यस सर, मैं सर वो फाइनल में अपने में जब बोल मैं प्रोफेसर नीरजा अस्थाना मैम से आग्रह करूँगा कि मैम एक जो ये सेशन रहा है उसको आप एज ए चेयरपर्सन है तो कंक्लूड करें। थैंक यू। सम्मानित मंच, इस सभागार में उपस्थित सब प्रोफेसर्स, रिसर्च स्कॉलर्स, प्यारे बच्चों, हम लोग कल से एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत लंबी चर्चा कर रहे हैं, समय की बहुत कमी है। मैं सिर्फ एक सेंटेंस बोलूंगी, इट इज बेटर टू हैव अ बिटर फ्रेंड देन टू हैव अ स्वीट एनिमी। क्योंकि अगर हमारा मित्र कड़वा बोलता है तो हमारे अंदर कमियां निकालने के लिए बोलता है, और जो दुश्मन जो बोलता है और जब मित्र बोलता है मीठा तो खतरनाक होता है। अभी 3-4 चीजें मैंने सुनी जिसमें हमारा एक योग के ऊपर भी बात आई कि योग जो है वो हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट है। योग एक साइलेंट वेपन है जिससे कि हम पूरी दुनिया में डिस्ट्रक्शन को रोक भी सकते हैं, माइंडसेट को चेंज भी कर सकते हैं, और ये योग हमारी हिंदुस्तान की पहचान भी है। लोग योग की जब बात आती है तो योग को एक्सरसाइज से जोड़ते हैं। योग इज नॉट ए एक्सरसाइज, इट इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ। हमारी जितने भी वायलेशन होते हैं, जितने भी डिस्ट्रक्शन होते हैं, जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, वो मेंटल वीकनेस और मेंटल डिसऑर्डर की वजह से ज्यादा होते हैं। दुनिया में लोग कहते हैं ट्रम्पोफोबिया हो गया है, वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम ट्रम्पोफोबिया, पर मुझे लगता है ट्रम्प इज सफरिंग फ्रॉम इंडोफोबिया। उन्हें सबसे ज्यादा डर हिंदुस्तान से लगता है। उन्होंने टैरिफ बढ़ाया 50%, हिंदुस्तान ने कुछ नहीं कहा, साइलेंट रहा, और साइलेंट किलर की तरह से, साइलेंट ऑब्जर्वर की तरह से, साइलेंट इंस्ट्रूमेंट की तरफ से दूसरा रास्ता ढूंढा, और उन्होंने यूरोपियन यूनियन से एक ट्रेड एग्रीमेंट करके उनको बता दिया, वी आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन यू, वी आर नॉट योर स्लेव्स, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ यू। ट्रम्प को अपना डिसीजन वापस लेना पड़ा, और अल्टीमेटली क्या हुआ, हमारा जो साइलेंट इंस्ट्रूमेंट है, मेंटल स्ट्रेंथ जो हमारी है, हमने उससे विनोवर करा। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि हमको अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है, हमें अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, हमें पूरी दुनिया को ये मैसेज देना है कि हम वो वाले हिंदुस्तान नहीं जहां हम डुगडुगी बजाया करते थे, जहां पर हम सपेरों का देश कहलाते थे। हम वो देश हैं जो लोगों को रास्ता दिखाते हैं, लोगों को मेंटल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मेंटल स्ट्रेंथ के साथ वो दिखाते हैं कि हम वो नहीं है जो आप हमें समझते थे। दूसरी चीज, जो बच्चों ने यहाँ प्रेजेंटेशन दिया, मैं उनसे सिर्फ एक सबमिशन करना चाहती हूँ कि जब हम किसी भी जगह पर पेपर प्रेजेंट करने आते हैं तो हमें एक प्रोज की तरह से इसको रीडिंग डाइस नहीं बनाना चाहिए। ये हमने एक पेपर ले लिया और यहाँ पर आके हमने उसको A to Z पढ़ दिया, ठीक है। किसी भी चीज को हमें प्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमको उसको इनहेल करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, और भले ही आप 2 सेंटेंस बोले, बट दैट शुड बी एक्सटेम्पोर, दैट शुड बी फ्रॉम योर हार्ट, दैट शुड बी फ्रॉम द बकेट ऑफ योर नॉलेज। जब तक हम अपनी नॉलेज को जो है एक्सपेंड नहीं करेंगे, जब तक अपनी नॉलेज के साथ कॉन्फिडेंस लेवल नहीं डेवलप करेंगे, तब तक हम उस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते। लर्निंग बाय डूइंग, जब आप करोगे तभी तो सीखोगे। जब हम कॉपी पेस्ट करने लगेंगे तो हम सीखते नहीं है, हम एक फॉर्मेलिटीज दिखाते हैं कि हमने कुछ लिखा, हमने कुछ पढ़ा और एक फॉर्मेलिटी को खत्म कर दिया। नो, आप लर्निंग बाय डूइंग करिए। आप 4 लाइनें बोलिए, लेकिन दैट शुड बी फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट, ठीक है। आपने अपनी तरफ से पूरी अच्छी कोशिश करी, लेकिन आज की जो जनरेशन है उसके साथ पता नहीं क्यों क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो लोग कॉपी पेस्ट पे ज्यादा यकीन करने लगे, सीखने पे कम करते हैं। मेरा एज ए स्टूडेंट ऑफ मिलिट्री साइंस, एज ए एल्डर ऑफ यू ऑल, मैं सिर्फ आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आप सीख के पढ़िए,
सीख के बताइए, एक कुछ नया इनोवेटिव आइडिया दीजिए। पूरी जहां कहीं भी हम बैठे हम एक मैसेज लेके जाएं, दिस वन पर्टिकुलर बॉय, दिस वन पर्टिकुलर गर्ल हैज गिवन समथिंग न्यू। यही तो थीम है हमारा कि हमें कुछ सीखना है, और सीखिए। कैसे सीखेंगे? लर्निंग बाय डूइंग। लास्ट में मैं इस पूरी के पूरे नेशनल सेमिनार के ऑर्गेनाइजर्स, स्पेशली यशार्थ गौतम, उनको बहुत साधुवाद दूंगी, बधाई दूंगी कि उन्होंने इतनी अच्छी तरह से पूरे सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया और मिलिट्री साइंस डिपार्टमेंट और बरेली कॉलेज के लिए एक माइलस्टोन सेट करा। उन्होंने बताया कि हम इनएक्सपीरियंस होने के बाद भी, हम नए होने के बाद भी वो कर सकते हैं जो यहाँ के बड़े बड़े लोगों ने एक लंबे समय से नहीं किया था। आई एम प्राउड टू से दैट ही हैज डन दैट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम, आपने जो सजेशन दिया, मैं एज ए इस सेशन के कोऑर्डिनेटर के रूप में बस ये कहूँगा कि मैम, मेरे कुछ जो साथी हैं वो इस दौड़ की शुरुआत कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता है कि पहला स्टेप कैसे लिया जाता है, तो उन्होंने वो पेपर के साथ प्रेजेंट किया। और देन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब हम दोबारा कभी बरेली कॉलेज बरेली में मिलेंगे तो वो पेपर लेस होंगे और हृदय से बोलेंगे। बिल्कुल यही मैं चाहती हूँ। सर ने भी कहा था कि अक्षर थोड़ा सा कुछ हो जाए, तो सर टाइम ज़्यादा हो गया, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि बस केवल इतना, अपने जो मेरा प्रेजेंटेशन था, हम लोग अभी तक, हम जब से बात कर रहे हैं, हम 29% जो लैंड है हम उसकी बात कर रहे थे, लेकिन जो सारी जो लड़ाई जो चल रही है अब वो शिफ्ट हो रही है 71% की तरफ, क्योंकि 71% जहाँ पानी है वहाँ जो रिसोर्सेज है हम उनका अभी यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं, और उसी रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन के लिए ये सारी की सारी चीजें शिफ्ट हो रही हैं, क्योंकि हमने लैंड के रिसोर्सेज को यूज कर लिया है। और मैं ज्यादा नहीं हूँ क्योंकि हम लेट हो रहे हैं। मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए सर को आमंत्रित करूंगा। सर एमपी सिंह सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सर आप वोट ऑफ थैंक्स के लिए अभी। ठीक है, इसके बाद मैं उसके बाद ना माइक आपको हैंड ओवर करूंगा। राष्ट्रीय संगोष्ठी के इस सेशन में अभी बहुत से शोधार्थी, कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर्स और कुछ छात्रों ने अपने पेपर्स प्रेजेंट किए, सारगर्भित व्याख्यान दिए, जिससे काफी लाभान्वित हुए हम लोग, सभी लोग छात्र। इस सेशन में सबसे पहले मैं आभार के लिए बुलाया गया, तो मैं सबसे पहला आभार वाणिज्य विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर भूपेंद्र सिंह साहब का मैं आभारी हूँ, जिन्होंने बहुमूल्य समय, क्योंकि उनके पास एक पद और है जो सभी लोग जानते हैं, उसे बताने के लिए छोटा कोई शब्द नहीं है। दूसरा, मैं हमारे विभाग की प्रोफेसर नीरजा अस्थाना जी का मैं आभारी हूँ, जिन्होंने बहुत कम बहुमूल्य समय निकाल करके यहाँ पधारी, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरठ कॉलेज मेरठ से पधारे हमारे परम मित्र, सगे भाई, से भी बढ़ के भाई नवीन वर्मा जी का मैं बहुत ही आभारी हूँ, जिन्होंने यहाँ आकर के अपना समय दिया। और ICWA के अमन कुमार जी को मैं आभारी हूँ, जिन्होंने यहाँ पे अपना समय दे रहे हैं। और साथ ही जो यहाँ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अक्षय जी, बहुत ही अच्छा, जो भी पेपर पढ़े गए उसको संक्षिप्त बताते हुए इतना बढ़िया ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया कि हम लोग उसको सुन करके बड़ा ही बहुत ही अच्छा लगा। उनकी विद्वता का मैं कायल रहूंगा हमेशा। नहीं, बहुत अच्छा, जितना भी पेपर पढ़ा गया उसको संक्षिप्त किया उन्होंने, इतना बढ़िया संक्षिप्त किया कि मैं उसको साथ में एक शेर के साथ, मैं शेर जरूर बोलता हूँ तो मैं नहीं पाता, 2 लाइन का है
कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तबीयत से उठा लो आज। धन्यवाद। जवाब जय। हाँ, थैंक यू सर। और मैं अब मैं खुशवा सर से आग्रह करता हूं कि जहां से सर ने मुझे माइक दिया था, अब आप दोबारा ही माइक आप लें और आगे की कार्रवाई को आप पूर्ण करें। थैंक यू वेरी मच सर। तकनीकी सत्र के समापन समारोह के सत्र में हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले इस टेक्निकल सेशन के जो चेयरपर्सन है प्रोफेसर नीरजा अस्थाना मैम को धन्यवाद देने के लिए मैं आग्रह करता हूं प्रोफेसर एमबी कलहन सर से कि वो आए और मैम को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। इस टेक्निकल सेशन के स्पीकर मेरठ से आए प्रोफेसर नवीन वर्मा सर को सम्मानित करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर संजय यादव सर को, जो एलएलबी डिपार्टमेंट के हमारे हेड साहब हैं। और मैं कॉमर्स विभाग के प्रभारी और इस टेक्निकल सेशन के स्पीकर प्रोफेसर भूपेंद्र सर को सम्मानित करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल सर को कि वो सर को स्मृति चिन्ह दे करके सम्मानित करें। इस टेक्निकल सेशन को जो पूरा जो कि संचालित किया हमारे कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अक्षय कुमार सर को सम्मानित करने के लिए मैं प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह सर से आग्रह करता हूं आए और सर को सम्मानित करें, स्मृति चिन्ह प्रदान करते। इस प्रकार से यह तकनीकी सत्र संपन्न हुआ और